बहुत सारे यंग लोग ट्रेडिंग में अभी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो क्या चीज़ें उनको ध्यान में रखनी चाहिए when जी। they enter, या ट्रेड करते वक्त क्या ध्यान में रखना चाहिए? एक तो पहले सबसे पहले सवाल आता है कि ट्रेड क्यों करना चाहते हैं? तो ट्रेडिंग में कोई पैसा नहीं बनाता है एंड ऑफ द डे। जो 2% लोग जो पैसा बनाते हैं, दीज आर इंस्टीट्यूशंस और इन हैंडफुल ऑफ इंडिविजुअल्स, एंड दोज इंडिविजुअल्स दे डोंट टॉक, दे मेक मनी। हाँ, दैट इज करेक्ट, बिकॉज दे आर मेकिंग मनी डेफिनेटली। यस। अगर किसी को एसेट मैनेजमेंट कैपिटल बिजनेस में जाना है, जी। क्या स्किल सेट लगते हैं इंडस्ट्री में जब आप ग्रो करते हो फाइनेंस इंडस्ट्री में? तो अप्रोच वाइज ग्रोथ के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? वरना गूगल मैप कैसे रेलेवेंट है? क्योंकि वो लगातार अपडेट करता रहता है, राइट, एंड इसलिए आप उसके ऊपर रिलायबिलिटी रखते हैं, ओके, है ना? आप कन्वीनियंटली उसको, तो वो कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करें। तो हमें भी किसी ना किसी तरह के कोर्सेज करें हम। कैंडिडेट कुछ मिस्टेक कर देता है इंटरव्यू में, जी। या डूज एंड डोंट्स ऑफ इंटरव्यू जनरली, जी। अगर आप उस पर कुछ लाइट दे सको कि क्या होता है और आप क्या करना चाहिए बेसिकली? कई बार कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए बिना तैयारी के आ जाते हैं। ये क्वेश्चन पे ही मैं सॉरी, अब ये बहुत सही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बिकॉज ये मैंने कहीं पिछले पॉडकास्ट में भी सुना है, ये है। तो ऑडियंस के लिए जब आप बोल रहे हो कि तैयार हो गया तो क्या हो गया? Hello guys, hi, this is Ganesh Nayak. I help finance professionals and students to excel in their career and become a better version of themselves. And I also help students preparing for competitive exams like CFA, FRM, and SCR. And today I'm back with one of the podcasts where I'm going to be talking to industry people, talking about their experience in the industry, what skill sets are needed in the industry, and how young candidates can grow in the market. So today we have with us Vivek sir. So Vivek sir, please brief introduction आप अगर दे सकते हैं ऑडियंस को, आपका टोटल करियर एक्सपीरियंस और आप अभी क्या कर रहे हैं? So basically, my total work experience is approximately of 27, 28 years. So first 3 years post passing my master's in management, I landed a campus job with a Swiss multinational. Okay. And initially I thought it's a wonder job and a Okay. multinational company. So in 98, that was a great thing. Okay. So I joined the organization, not understanding as to in which direction I would like to go. Okay. So I worked with them for approximately 3.5 odd years. Then my calling was in the area of finance. Okay. Right? My calling was in the area of finance, and whereby I was extremely bad in my own cash flow management. So Okay. it was a contrarian situation, all right, whereby I want to go in certain area in which you personally have done nothing about. Okay. All right. So banks is something I was too keen to get into. Okay. So I tried couple of options to get inside the bank. I was not getting any. Okay. So then I got opportunity to work with Aditya Birla Capital. So I jumped to the opportunity with the idea of going to the banks. Okay. So the idea was banks. Okay. All right. So, but once I started working with the Capital, and that's a great organization, Aditya Birla Group, and things started working out really well for me. Okay. So I joined in the capacity of sales manager in Aditya Birla Capital, and worked for approximately 16 odd years. And by the time I left the organization, I was managing partner with Aditya Birla Capital. Okay. Okay. And then after that? Yeah, after that I started my own distribution company, because I was handling clients portfolios. I was helping them invest their money wisely so that different life goals can be met and can be taken care of. Okay. So in Aditya Birla Capital, there were certain limitations as to what kind of products you can offer them to fulfill their needs and requirements. And I started my equity exposure journey by way of investing into SIPs pretty early in my life in 2003 onwards. Right. And all this while I saw what wonder opportunity this is having as far as wealth creation is concerned. आप छोटा छोटा पैसा हर महीने आप जमा करते रहते हो, और वो कैसे एक बूंद बूंद करके you create a beautiful bouquet. Okay. So and equity भी सीखा उस दौरान। तो मैंने कहा जब ये अच्छी चीज मैंने खुद करी है, तो why not to pass on this experience, this experiential journey with individuals, ताकि उनका भी भला हो, and as a business I'll also have my own income. Okay. So, and without any limitations of the kind of products that you are marketing and taking to the people. So from sales I moved on to solution provider. Okay. तो सेल्स का एस्पेक्ट खत्म हो जाता है, तो हर एक की जो ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप क्या उन्हें अपॉर्चुनिटी देते हैं, क्या ऑप्शन देते हैं, ताकि उनके लाइफ गोल्स पूरे अचीव हों एंड हैप्पीनेस कम्स इन.
तो ये जर्नी कब स्टार्ट हुई आपकी जो एंटरप्रेन्योरशिप आपने किया? 2018. ओके, सो रफली अराउंड 7 years. I'm sorry, 2019. 2019. जी ओके. जी तो हम अभी जो कॉन्वर्सेशन करेंगे उसको दो पार्ट में करते हैं. जी आदित्य बिरला ग्रुप एज अ कॉर्पोरेट साइड आपका एक्सपीरियंस कैसा था और जी. नाउ एंटरप्रेन्योरशिप साइड में कैसा था? Right. सो विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट साइड, तो आप थ्रू आउट द जर्नी यू आर इनटू सेल्स, Yes. सेलिंग साइड पे ही थे आप? Yes. Okay. Yes. तो- Team building and sales. ओके, टीम बिल्डिंग एंड सेल्स. सो जी. नाउ अगर किसी को जो एसेट मैनेजमेंट कैपिटल बिजनेस में जाना है, जी any new person who wants to join in, जी irrespective of sales or not, but जी. क्या स्किल सेट लगते हैं, मतलब इंटरव्यूअर्स क्या देखते हैं Okay. एक्सप्लिसिट? फाइनेंशियल सेक्टर, जो मैं कई बार बोलता हूँ, इट इज काइंड ऑफ टॉप ऑफ द पिरामिड पॉइंट ऑफ डिस्कशन. ओके. क्योंकि पोस्ट टैक्स पैसे की आप बात कर रहे हो, तभी आप इन्वेस्टमेंट्स, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट्स हो, सेविंग्स हो, दिस इज पोस्ट टैक्स मनी, बराबर. है ना. तो सारा मेहनत करने के बाद का जो आखिरी का पैसा है, उसे आप इन्वेस्ट करते हो हम्म. या सेव करते हो. हम्म. तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ट्रस्ट. क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, बराबर. और ट्रस्ट ऐसे बोल के बिल्ड नहीं होगा. There are certain things that we need to consistently deliver by way of being consistent on our own. ओके. So one is qualification for sure. ओके. कि आप you are sufficiently qualified. Second thing is, with changing times we need to understand, we need to be relevant. हम्म. So how do we become relevant? See, getting a master's degree in management or passing CA only gives you certifications or degree. These courses, they still don't make you relevant. Relevance is something that brings in from the flavor of the market that is currently demanding. ओके. तो मार्केट में क्या चल रहा है? जी हाँ, जो अभी चल Okay. रहा है, करेक्ट. Okay. तो वो उससे रेलेवेंस आएगा. तो वो हर रिक्रूटर will try to find out whether you are relevant today. Okay. And if in the conversation they are able to make out and understand that you are flexible enough and you will be resilient and you will be relevant in coming times, for sure he will not be losing any opportunity to not hire you, hire the individual. Okay. Okay. All right. So relevance is extremely important, which is actually little difficult to explain. But looking at the job requirement, your individual qualification, Okay. your passion for work, so you should be passionate as well. Whatever you wish to do, if there is no energy level in your thought process, in your discussion, in your Right. conversation, in your understanding, हाँ. so nothing will. So relevance खत्म हो जाता है. खत्म हो जाता Definitely, है, हाँ. है ना. तो रेलेवेंस के साथ साथ आपका पैशन उस एरिया के बारे में. सब चीजें आपको नहीं पता है, ये कोई नहीं चाहता है. ये सब चीजें आप जानते हो, यू शुड बी मास्टर ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ सर्टेन एरिया, नो. बट इफ यू आर पैशनेट, आप रेलेवेंट है, तो आप कई सारी चीजें सीख लेंगे उस सिस्टम में आके. Right. So these are three things which basically I feel are extremely important, very basic ones. But these are the core things that a recruiter will look at. कमिंग टू दैट रेलेवेंस वाला पार्ट जो अभी आपने बोला, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में हूँ, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेगुलेशंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. Understanding of regulations बिल्कुल जरूरी है. As to what kind of regulations are there, you should be knowing the importance of relevation of the regulations. शायद सारे आपको पता हो और याद हो, उसकी जरूरत नहीं है. अच्छा. Because you can always make use of the rule book to check it back, but to use or refer the rule book, you should be knowing this is good enough. Okay. Because आप सब चीजें यदि पता है, all right, तभी आपको हायर किया जाएगा, ऐसा नहीं है. Okay. पता है, it is always advantageous, all right, but what will be more relevant to use and implement at that point in time, if you know that it is good enough. ओके. आपके एक्सपीरियंस में इंडस्ट्री में जब आप ग्रो करते हो, फाइनेंस इंडस्ट्री में, तो अप्रोच वाइज ग्रोथ के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के करियर में? वो फैक्टर्स क्या है आपके हिसाब से और कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं? ग्रोथ के फैक्टर्स यदि हम देखें, करेक्ट, सो ग्रोथ पर से यदि इफ वी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ, आप इसे कैसे ब्रेकअप करना चाहेंगे? ग्रोथ इन सैलरी एंड आल्सो इन डेजिग्नेशन. करेक्ट. सो ग्रोथ इन बोथ द एरियाज. एंड शायद पिछले हफ्ते इकोनॉमिक टाइम्स में हमने देखा है कि लॉट ऑफ कंपनीज, इवन IT कंपनीज एंड FMCGs, दे आर गिविंग एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो प्रमोशनल ग्रोथ दे रहे हैं, बट इंक्रीमेंटल हाइक नहीं दे रहे हैं. करेक्ट.
So this kind of growth, how this is going to help those individuals? Only a certain part of the need will be taken care of, and this is also reflecting that there is lack of skill availability in the market. इसीलिए सेम पर्सन को ही इसीलिए Extra. उसी को आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं और आप कैश फ्लोज को भी हैम्पर नहीं करना चाह रहे हैं. ओके सो स्किल सेट एंड रेलेवेंसी दोनों चीजें बिल्कुल जरूरी हैं. हमें कॉन्स्टेंटली अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करने के लिए ओके कार्यरत रहना ही पड़ेगा. क्योंकि आप यदि से फॉर एग्जांपल आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट, उसके बाद मैंने एमबीए किया है मार्केटिंग में, फाइनेंस में. अब ये करने के बाद क्या मेरी पढ़ाई खत्म हो गई? एवरी नाउ एंड देन आई कीप ऑन लर्निंग. फाइनेंस वैसे भी बहुत डायनामिक वर्ल्ड है. बिल्कुल डायनेमिक है. अच्छा फाइनेंस तो है ही डायनेमिक. मैं तो बोल रहा हूँ हर एरिया में देयर इज डायनेमिज्म. यू नीड टू कॉन्स्टेंटली अपग्रेड, तभी आप रेलेवेंट हो पाओगे. वरना गूगल मैप कैसे रेलेवेंट है? क्योंकि वो लगातार अपडेट करता रहता है. राइट एंड इसलिए आप उसके ऊपर रिलायबिलिटी रखते हैं, ओके है ना. आप कन्वीनियंटली उसको, तो वो कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करें. तो हमें भी किसी ना किसी तरह के कोर्सेज करें, हम इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करें, नॉलेज को बढ़ाएं, अपने फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएं. इन सब के साथ साथ वी शुड ऑल्सो इम्प्रूव अवर कम्युनिकेशन स्किल्स. ओके कम्युनिकेशन में आई गिव अ बिग इम्पोर्टेंस टू द आर्ट ऑफ लिसनिंग. ओके कि हम सब बात करते हैं कि कम्युनिकेशन इज हाउ यू आर टॉकिंग, हाउ यू आर स्पीकिंग. नो, ऑल दिस मे बी ऑफ एडिशनल एडवांटेज, yes. बट आपका आर्ट ऑफ लिसनिंग शुड बी देयर. कि आप सामने वाला क्या कह रहा है उसे आप सुन सको, तो आपका ब्रीफ शॉर्ट आंसर विल फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट्स. So going back to the old question of appearing for the interview and what requirement, this also is an important pointer. कि आप Okay. you should be able to listen कि what the interviewer or the person who is hiring you वो क्या सुनना चाहता है. You should be able to read in between the lines what he wants to listen, because it's a brief time that you're spending. हाँ राइट. So उसके लिए वो बैकएंड में आप रेज्यूम के ऊपर काम करो, उसको रेलिवेंट बनाइए, अपने क्वालिफिकेशंस ठीक रखिए, सर्टिफिकेशंस रखिए. उसके अलावा आप सुनिए वो क्या पूछना क्या चाह रहे हैं. और आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इट इज अगेन नो हार्म आस्किंग, सर जरा फिर से बताइए. 2 बार पूछिए, सर नहीं समझा, प्लीज आई डिड नॉट गेट द ओके पॉइंट. ओके इट इज नो हार्म इन दैट. ओके. एक रिलेटेड टू दिस इंटरव्यू इटसेल्फ, क्या आपने अपने करियर में ऐसे, अगर आपको कोई इंस्टेंसेस पता है या कभी आपने देखा है कि कैंडिडेट कुछ मिस्टेक कर देता है इंटरव्यू में, जी. या डूज एंड डोंट्स ऑफ इंटरव्यू जनरली, जी, अगर आप उस पर कुछ लाइट दे सको कि क्या होता है और आप क्या करना चाहिए बेसिकली. कई बार कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए बिना तैयारी के आ जाते हैं. ये क्वेश्चन पे ही मैं सॉरी, अब ये बहुत सही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बिकॉज ये मैंने कहीं पिछले पॉडकास्ट में भी सुना है. ये है तो ऑडियंस के लिए, जब आप बोल रहे हो कि तैयार हो क्या ना, तो क्या हो क्या है, आप थोड़ा उस पर और अगर जी जी. तैयारी, जो जॉब रिक्वायरमेंट है, पहले उस जॉब रिक्वायरमेंट को हम समझें ओके कि एग्जैक्टली जॉब की क्या डिमांड है. ठीक है. और कई बार ऐसा होगा सरप्राइजिंगली कि आप उस जॉब की डिमांड को फुलफिल आप नहीं करते हैं. ओके ठीक है. ओके तो सिर्फ जॉब रिक्वायरमेंट आ गई है जो आपकी क्वालिफिकेशन से मैच होती है, तो यू आर नॉट एलिजिबल टू गो फॉर द इंटरव्यू. मैं तो बोलता हूँ मत जाओ. ओके if you are aligning with the role and responsibilities, ठीक है. Okay. तो उसको आप ट्वीक भी करने की कोशिश मत करिए कि मैं अपनी सीवी में यह बदलाव करूं. यदि आप बदलाव कर रहे हैं तो साथ में अपने कैरेक्टर में भी बदलाव करिए. ओके so spend some quality time looking at the job requirement, looking at the company, the culture of the organization. आपका रिज्यूमे आप उसके हिसाब से जरूर बदलिए, ट्वीक करिए, लेकिन समझ के इट शुड नॉट गो बियॉन्ड द बाउंड्रीज. वरना आप जब मिलने जाएंगे तो वो सिंक नहीं होगा आपका सीवी कुछ और बोल रहा है और आप कुछ और कह रहे हैं. सो क्योंकि आजकल तो चैट जीपीटी आपका रिव्यू करके नया बना के दे देगा. 2 मिनट में नया सीवी तैयार हो जाएगा. रिलेवेंस पूरा आ जाएगा उस जॉब रिक्वायरमेंट के साथ. लेकिन आपका क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं जब बात करने बैठूंगा तो देन आई हैव टू कम विद क्वालिटी आउटकम एज वेल. तो आप उससे रिलेट करके रियलिटी के साथ जितने अलाइंड रहेंगे, उतना यू विल बी एबल टू गिव वैल्यू टू so company's culture, company's job requirement, your qualification, and how you can link up these three things so that the link up becomes good, which is good for the organization and good for you. Both the organization and the individual will be able to grow collectively, effectively, faster. एक एड ऑन क्वेश्चन इसके ऊपर, अभी जो स्टूडेंट होगा या जो फर्स्ट टाइम जॉब कर रहा है, उसके दिमाग में क्वेरी आएगी कि कल्चर कैसे मैं आइडेंटिफाई करूं. वेरी इजी. आप उस गूगल पे चले जाइए, उस कंपनी का के
काफ़ी एम्प्लॉय सीनियर एम्प्लॉयज़ का हिस्ट्री देखिए, हाउ ऑफन दे आर चेंजिंग। कई बार वो लोग रिव्यूज़ भी डालते हैं कंपनी का एट द टाइम ऑफ लीविंग कि दिस दे हैड अ गुड एक्सपीरियंस विद द ऑर्गेनाइजेशन। यदि अड़ोसी पड़ोसी किसी के थ्रू यू कैन फाइंड समबडी हु इज वर्किंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, Okay. प्लीज़ रीच आउट टू द पर्सन। और आप प्रोफेशनल कोर्स पे जा रहे हैं तो लिंक्डइन में आपका प्रोफाइल होना ज़रूरी है। उस कंपनी का कोई ना कोई एम्प्लॉय के साथ रीच आउट करके हैव अ कॉन्वर्सेशन एंड आस्क देम अबाउट the roles and responsibilities and how's the work culture of the organization. These are basic things you can always get to know. एंड राइट नाउ तो लिंक्डइन भी है, तो आप लिंक्डइन पे भी लोगों को रीच आउट करके एटलीस्ट बात करके पता कर सकते हो कि जरूर। रोल क्या है, अगर उनको पता है जी जी या कल्चर कैसा है। जी हाँ। आई जस्ट एड ऑन टू दिस पॉइंट कि कहीं मुझे जाना होता है, जैसे मैं आज आपके सुंदर ऑफिस में आया, ठीक है, ब्यूटीफुल ऑफिस दो, ओके, तो आई मेड यूज ऑफ गूगल मैप्स। तो मैं हाँ। पूरा गूगल मैप के ऊपर रिलायबल नहीं था। मैंने कहा उसके अलावा भी आई नो द एरिया, तो गूगल मैप घुमा के मुझे भेज रहा था। सो आई न्यू के देयर इज अनदर रोड दैट विल टेक यू टू द डेस्टिनेशन द सिंपलिस्टिक वे। Okay. तो मैंने वो उस रास्ते को अडॉप्ट किया, ठीक है। Okay. तो सिस्टम्स होने के बावजूद भी वी नीड टू बी ओपन टू ऑब्जर्वेशन। मतलब वो लोग क्या, जैसे जस्ट टू क्लैरिफाई द पॉइंट, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये जी। जैसे कि वो कंपनी यूट्यूब पे क्या डाल रही है, सोशल मीडिया पे क्या डाल रही है, आप थोड़ा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी का फील क्या है, जी हाँ, थॉट प्रोसेस क्या है, जी हाँ, आइडिया लग सकता जी है। हाँ, जी हाँ। ओके। एक कल्चर के बारे में आप, अच्छा, और पता लगाना है आपको, उस कंपनी के प्रोडक्ट के कंज्यूमर से आप जानकारी ले सकते हैं अच्छा। कि somebody who's using the services of that particular company, उससे पूछिए हाउ इज द ऑर्गेनाइजेशन, कैसी सर्विसेज हैं उनकी, कैसे उनके प्रोडक्ट्स हैं, ओके। उनका सेल्स टीम का आपके साथ, इनके साथ इंटरेक्शन कैसा है, या तो कंज्यूमर से या सम ऑफ द अदर कंपनी हु इज सप्लाइंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू दिस कंपनी, उनके पास भी आप रीच आउट कर सकते हो। ओके। सो देयर आर वेरियस वेज टू फाइंड आउट। अच्छा, जब आप इतने डिटेल में जाना चाह रहे हो तो फॉर श्योर आपने कंपनी के कल्चर एंड वैल्यूज के बारे में आप देख ही रहे हो। इफ इट इज अ लिस्टेड कंपनी तो आप फॉर श्योर, अब कोई ये तो करेगा नहीं यदि नॉन फाइनेंस रोल में जा रहा है कि उसकी बैलेंस शीट देखे। मैं तो बोलता हूँ उसके पिछले साल की बैलेंस शीट भी आप जाके देखो कि उसमें डायरेक्टर ने क्या नोट लिखा है। ओके। 2 साल के डायरेक्टर के नोट में देखो, डायरेक्टर इज एट द हेल्म ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो डायरेक्टर ने अगले साल का जो फोरकास्ट दिया है, क्या उसने इस साल वो फोरकास्ट कंप्लीट किया है? ओके। इट्स अ सिंपल थिंग कि वो जो लीडर यदि वो बोलता है ये 10 चीजें हम करेंगे, अगले साल आप उसकी बैलेंस शीट अवेलेबल है सारी वेबसाइट पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे चले जाइए, मिलेगा। राइट। तो वो कितने रेलेवेंट है, कितना डायरेक्टर लेवल से कितनी चीजें वो बोलते हैं और कितनी चीजें करते हैं, दैट इटसेल्फ इज अ क्लियर इंडिकेशन कि भैया ये जो बोलते हैं वो, सो देयर वर्ड्स एंड देयर एक्शंस इफ दे आर मैचिंग, दैट्स एड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, बिकॉज जॉब के पहले लोग इतना शायद रिसर्च नहीं करते, जो आप बोल रहे हो कि स्पेसिफिकली अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस कि कंपनी पैसा कैसे कमा रही है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको तभी समझेगा कि कैसे ग्रोथ होगा आपका एंड ऑल ऑफ इट, वेदर दिस फील्ड इटसेल्फ इज ग्रोइंग और नॉट। यस। और जो लोअर लेवल पे हायरिंग होती है या करियर ग्रोथ होता है और सीनियर लेवल पे होता है, क्या डिफरेंस है कि लोग कैसे ग्रो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? जैसे आप वीपीएन अबव आप पहुंच गए हो, वीपी पहुंच, जी, वहां से आपके आगे ग्रोथ कैसे होता है एज कंपेयर टू समबडी स्टार्टिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन? ओके, बड़ा एक सिंपल एनालॉजी मैं बताता हूँ। बारिश का समय चल रहा है अपने बॉम्बे में आजकल, तो लोग छाता खरीदने में बहुत रिसर्च करते हैं कि छाता Okay. बड़ा लूँ, छोटा लूँ, फोल्ड होने वाला लूँ या बड़ा, सो दैट लार्जर एरिया कैन बी कवर्ड, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान लगा देते हैं rather than to take care of their current roles and responsibilities. तो कई बार हम लोग हेजी हो जाते हैं अपने व्यू के बारे में। So the people who are at the senior level, they are clear with those views. वो जाके छाता खरीद लेंगे, they'll not think much about it. एक और एग्जाम्पल मैं देखता हूँ, एलन मस्क को देखो या देयर कपल ऑफ पीपल अबाउट देयर अटायर। आप राधा कृष्ण दमानी जी को देखिए, डीमार्ट वाले, मार्क है ना, मार्क ज़ुकरबर्ग को देखिए, ये बिल्कुल इनके वार्डरोब में कपड़े की कोई सिंपल एक ही तरह के कपड़े होते हैं। तो उन्हें उसमें भी दिमाग लगाने के लिए समय व्यतीत नहीं करना, ना उनके थॉट प्रोसेस में उससे स्पीड ब्रेकर बीच में लाना है उन्हें। दे वांट एब्सोल्युटली स्ट्रेट सिंपलिस्टिक आउटलुक कि भैया ये पहनना, कपड़े इज ओनली अटायर, माय वर्क शुड हैव प्रायोरिटी। कई बार लोग कपड़े चूज करने में इतना ज़्यादा समय लगा देते हैं कि द रियल प्रोडक्ट गेट्स लॉस्ट। तो बेसिकली आप बोल रहे हैं कि जो टॉप
आपकी ग्रोथ जो होती है VP एंड अबव जी। प्राइमरली बिकॉज आप ज्यादा फोकस्ड ओरिएंटेड हो, Absolutely. तभी आपका ग्रोथ होगा। जी हाँ, जी हाँ। तो आप उतनी कम चीजें आप इफेक्टिवली करते हैं। सो ऑल योर एवरीबडी इज गॉट लिमिटेड एनर्जी, सो जितनी उस एनर्जी को चैनलाइज करके कम लिमिटेड जोन में काफी देर तक कंसंट्रेटेड आप एनर्जी को चैनलाइज करेंगे, आउटकम विल बी फार बेटर। जैसे वो Okay. बचपन में हम जलाते थे ना सूरज की रोशनी से, वी यूज्ड टू बर्न पेपर लेंस लगा के, हाँ। तो क्या हो रहा है, सारी एनर्जी इज बीइंग कंसंट्रेटेड एंड इट्स Right. कमिंग ऑन द पेपर एंड द पेपर गेट्स बर्न। राइट। तो उसी तरह से टारगेट विल बी अचीव इफ वी आर कंसंट्रेटिंग ऑल अवर एफर्ट, सारी जी जान हम लगा के एक ही दिशा में लगाएंगे एनर्जी, तो विल गेट प्रॉपर आउटकम। सो ऑल दीज सक्सेसफुल पीपल एट सीनियर लेवल आर द पीपल हु नो वेयर टू कंसंट्रेट देयर एफर्ट्स एंड एनर्जी। ओके, दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, बहुत सही। इसी पे कनेक्टेड कि हम बहुत बार सुनते हैं कि यंग बच्चे को बच्चे भी सुनते हैं कि नेटवर्किंग करना है, जी कैसे करना है, किनके साथ करना है, नोबडी टेल्स दिस। जी आपको जनरल जो ज्ञान मिलता है कि आप नेटवर्किंग करो, जी। तो व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? व्हाट इज योर व्यू ऑन नेटवर्किंग, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन? नेटवर्किंग एक तो किससे करना चाहिए इज, आप जिस लेवल पे हैं, ठीक है, उस लेवल से एक ऊंचे बंदे के साथ आपको नेटवर्किंग करना चाहिए, तो बराबर। उसका जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है वो आप ले पाएंगे। ठीक है, आप नेटवर्क कर रहे हो somebody who is sub performer than you, so probability of you learning or getting value out of that person will be less। राइट। ठीक है, तो आप नेटवर्क करके if you are reaching out to reach out to the person who's 1 level 2 level 3 levels up the hierarchy, if we are talking about jobs, business में आप नेटवर्किंग कर रहे हो, तो network with people who are more 2-3 times more network than you yourself। ओके ऑल राइट, तो फिर आप वैल्यू दे पाओगे और ले पाओगे। ओके। तो अच्छा, किस फील्ड में यू नीड टू नेटवर्क? कई बार यू नीड टू नेटवर्क बियॉन्ड योर नोन सर्कल, बियॉन्ड योर रेलेवेंट फील्ड। क्यों? यू गेट वैल्यूएबल इनपुट बाय वे ऑफ गोइंग इनटू अननोन एरियाज। डाइवर्स पर्सपेक्टिव मिलता है। बिल्कुल जरूरी है डाइवर्सिटी की। यदि मैं फाइनेंस में डील करता हूँ और बस सिर्फ फाइनेंस की नॉलेज लेता रहूँ, ऑल राइट, तो मे बी एट टाइम्स सम नॉन, आई एम एन इन्वेस्टर, ठीक है, मुझे टेक्सचर के बारे में भी, कपड़े के बारे में भी मुझे जानकारी होनी चाहिए इफ आई एम इन्वेस्टिंग इनटू टेक्सटाइल कंपनीज। तो यदि इफ आई एम इन्वेस्टिंग इनटू वेल्सपन, तो वेल्सपन किस किस तरह के कपड़े बनाता है और कहाँ एक्सपोर्ट करता है, तो कई बार जाके उसके शोरूम में टच एंड फील कर लेना चाहिए कि एक्चुअली अच्छा है क्या, या सिर्फ उनकी बुक्स पे दिखता है, बैलेंस शीट पे दिखता है। ओके, है ना? ओके। सो कई बार यू नीड टू नो things beyond your known zone। अच्छा, this little bit topic is diversifying from the focus area, whereby senior people management they focus on only on the core area. Core areas doesn't mean you stop listening. So this is also listening. Listening doesn't only means hearing. Okay. Keeping your observation open to the situation, to the circumstances, to the entire setup and situation। तो जस्ट टू कनेक्ट, मतलब आपने जो बोला कि 2 लेवल ऊपर या 1 लेवल ऊपर आपको नेटवर्क करना है, सो इट्स नॉट नेसेसरली कि आप सिमिलर फील्ड में ही करो, थोड़ा सा डाइवर्स भी कर सकते हो। करना चाहिए। बिकॉज बहुत लोग क्या सोचते हैं कि मुझे अभी जॉब की जरूरत है तो मैं भी नेटवर्क करूंगा, फिर जैसे जॉब मिल जाता है तो वो लोग नेटवर्किंग कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। हाँ, नया जॉब भी नहीं ढूंढते हैं, नया नेटवर्किंग भी नहीं करते हैं, फिर से जब उनको नीड लगती है तो फिर से जॉब, वो प्रोसेस फिर से स्टार्ट होता है। तो उनके लिए क्या पॉइंट आपका व्यू है, मतलब जो ऐसा फॉलो कर रहे हैं? नेटवर्किंग को हम एक अलग से एक बोझ बना के नहीं लें, इट इज वे ऑफ लाइफ। अलग से आपको एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। आपसे फ्लाइट में आप ट्रैवल कर रहे हैं, 2 घंटे आपके अड़ोस पड़ोस में 2 लोग बैठे हैं या एक बैठा है, यू कैन स्टार्ट कॉन्वर्सेशन, हैव अ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन। एंड मुझे बताइए, कौन इंसान अपने बारे में बता के खुश नहीं होता? आप किसी से पूछिए भाई आप क्या करते हैं, not exactly in the same manner, there are different ways of opening the conversation। तो 2 घंटे का एक मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी विंडो खुलता है आपके लिए कि वो आदमी, सबको अपने बारे में बताने की बहुत जिज्ञासा है ना? Yes. आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे कितना मजा आ रहा है उसका जवाब देने में। हाँ, तो एवरीबडी वुड लाइक टू टेल अबाउट देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज वॉट एवर दे हैव। तो वो कॉन्वर्सेशन ओपन करिए एंड स्टे इन टच विद दैट पर्सन। तो आपने अलग से कुछ एफर्ट नहीं किया है। आपने, आप बस स्टॉप पे खड़े हैं, आप शेयर्ड बस में, यदि आप एयर कंडीशन बस में जाते हैं, व्हाट्स द नेम ऑफ द, सिटी फ्लो में जा रहे हैं,
तो आप बस के क्यू में खड़े हैं, 5-7 मिनट में गाड़ी बस आने वाली है, यू नो सर्टेन क्लास ऑफ सर्टेन कैटेगरी ऑफ पीपल ट्रैवल इन सिटी फ्लो, यू नो ऑलवेज नेटवर्क। पड़ोसी से यदि वो बात करना चाहे, ओपन अप पॉइंट ऑफ कॉन्वर्सेशन। लाइन में खड़े हैं 2 मिनट, भाई धूप बहुत हो रही है, छाता खोल लो, जो छाता हो रहा है उसको भी थोड़ा सा आप भीगो, थोड़ा सा उसको कवर कर लो, यू बिल्ड ट्रस्ट एंड रिलेशन। तो अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल एक्टिविटीज हेल्प यू बिल्ड नेटवर्क। कुछ नहीं कर रहे हैं आप, सिटी फ्लो में बैठे हुए हैं, पड़ोसी बात नहीं कर रहा है, तो नेटवर्क अपना लिंक्डइन के ऊपर थोड़ा आप काम करिए, इंप्रूव योर नेटवर्क ऑन द लिंक्डइन। तो आपने अलग से टाइम नहीं निकाला है, आप ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे हो, सोने वाले थे आप, अब नींद नहीं आ रही है, तो वो टिकटॉक देखने के बजाय आप लिंक्डइन पे जाके आप टिकटॉक बैंड है इंडिया में। चलो दूसरा रील सही, इंस्टा देख रहे हो, बराबर। इंस्टा देख रहे हैं, तो उसको छोड़ के इफ यू आर स्पेंडिंग टाइम इन इम्प्रूविंग योर ओन प्रोफाइल एंड यू रीचिंग आउट टू डिफरेंट पीपल, राइट अ नोट, उसके साथ कमेंट करके वो भेज दो। मल्टीपल अलग से समय निकालने की जरूरत है, एंड इट शुड बी वे ऑफ लाइफ, राइट। वी आर कनेक्टेड, ह्यूमन बीइंग्स आर कनेक्टेड, तो उसको इस्तेमाल। जस्ट अ पॉइंट, देयर इज वन पर्सन कॉल्ड अभी आर्या। हाँ जी, तो उनका एक मैंने सेमिनार अटेंड किया था। ही बेसिकली टेल्स यू कि आपको किसी से नेटवर्क करना है तो उनको एक शॉर्ट वीडियो बनाओ खुद का जी, और वो वीडियो पर्सनलाइज बना के उनको भेजो, जी, एंड देन यू नेटवर्क विद दैट पर्सन। हायर चांसेस दैट ही विल रिवर्ट बैक टू यू, हायर चांसेस दैट ही विल डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। वैसा जी, तो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये आपका पॉइंट मुझे वहाँ पे कुछ कनेक्ट कर गया कि हाँ, आप पर्सनल नोट करके आप भेजो। बहुत जी। लोग अभी जो जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं हाँ जी, स्टैंडर्ड टेम्पलेट डालते हैं, तो nobody helps basically, then they cry के नहीं होता है, बट आप पर्सनलाइज्ड टच ही नहीं दे रहे उसको चीज जी। को, दैट इज अ डिफरेंट व्यू। नाउ गुड कमिंग गुड, ये गुड थैंक्स, ये पॉइंट मुझे नहीं पता था, देखिए सीख लिया, आप समझ लिए। तो अभी मैं आपके इन्वेस्टिंग वाले जर्नी पे आना चाहूंगा जी। कि आपने जैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, एक्टिव ट्रेडिंग स्टार्ट की, तो वो कब से स्टार्ट हुआ और कैसा रहा अब तक का जर्नी आपका? 2003 से मैंने इन्वेस्टिंग शुरू किया था, एज फार एज म्यूचुअल फंड्स आर कंसर्न। सो मेरे 2 अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने राय दी कि दिस इज अ गुड थिंग, दे इंट्रोड्यूस मी टू द कंसेप्ट। तो 2003 से आई हैव बीन एक्टिव, आई मीन्स माय फैमिली, सुषमा एंड मी, वी हैव बीन actively investing into SIPs. And then with another friend of mine, we started learning equities. Okay. So we took up fundamental course, we took up technical course in various institutes, Bombay Stock Exchange, different senior experienced people. So technical, fundamental, psychology of investing, because technical and fundamental you may know, but how you are dealing with the price movement and your own approach towards the money, Right. all that is also to be upgraded. So all this while, so actively then I started investing into equities from 2007 or 8 onwards. Okay. And then 14-15 I realized this is the calling, and this is the comfort zone whereby this area is working well for me. Okay. And I kind of achieved my financial freedom at that age. So then gradually I decided next 2-3 years I'm going to move on my own, Okay. and take others into the same process, so that that freedom also comes to them. And in that process, this is also giving a meaningful income to me. So best of both worlds. So Okay. taking them to their destination, also earning. So now आप वेल्थ मैनेज कर रहे जी, हो, साइड जी। बाय साइड आप खुद का ट्रेडिंग भी कर रहे हो, जी हाँ, राइट? तो पहले मतलब ट्रेडिंग पे ही और डिटेल में, बहुत सारे यंग लोग ट्रेडिंग में अभी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो क्या चीज़ें उनको ध्यान में रखनी चाहिए when they enter, या ट्रेड करते वक्त क्या ध्यान में रखना चाहिए? एक तो सबसे पहले सवाल आता है कि ट्रेड क्यों करना चाहते हैं। ओके। सबसे पहले पैसा बनाना है। पैसा बनाना, तो पैसा बनाने के बहुत और तरीके हैं, ट्रेड ही क्यों करना है, ओके, वेरी वेरी गुड। ओके, ट्रेड ही क्यों, और पैसे बनाने के और बहुत बहुत सारे तरीके हैं। पैसा गंवाने का पक्का तरीका है ट्रेडिंग। मतलब पैसे गंवाने हो तो पक्का ट्रेडिंग करो, Okay. जो पैसा है ना बचा कुचा वो भी चला जाएगा, ठीक है। ऐसा आपने कम ही सुना होगा कि ट्रेडिंग करके कोई राकेश झुनझुनवाला बन गया, ठीक है। ट्रेडिंग करके दिवालिया हो जाते हैं लोग, दे लूज कैपिटल, दे लूज टाइम, एंड देन दे लैंड अप इन अ बैड जोन। So now when we are explicitly talking about trading, आप बोल रहे हैं कि बाय करके इमीडिएटली सेल कर दिया, या बेसिकली स्विंग ट्रेड कर दिया, या वैसा कुछ? मैं दोनों को मैं ट्रेडिंग बोल रहा हूँ। Long term investing also. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहिए, हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, पर वो किसे करनी चाहिए, विल कम टू दैट लेटर ऑन, ठीक है ना। हाँ. तो अब आजकल बड़ा पॉपुलर हो गया है पोस्ट कोविड,
कि आई एम इन्वेस्टिंग एज वेल इनटू इक्विटीज डायरेक्टली एंड आई ट्रेड. अच्छा, तो बड़ा आई गिव यू माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग. ये क्या है, ये हाउ दिस इज कमिंग, हाउ दिस इज मैनिफेस्टिंग. ज़्यादातर लोग नहीं करना चाहते हैं, ठीक है. लेकिन जब वो कॉफ़ी शॉप पे बैठ के बात कर रहे होते हैं ना, 4 लोग बता रहे होते हैं मैंने टीसीएस लिया वो 2 गुना हो गया, मैंने टाटा पावर लिया वो 4 गुना हो गया. हाँ, तो बस वो फोमो, यार ये तो छूट गया मेरे हाथ से. तो अच्छा छूट गया तो चलो छूट गया, कोई बात नहीं, लेट मी जंप इनटू द बैंड वैगन नाउ. हाँ भाई मैं भी करता हूँ, राइट. ठीक है मैं भी करता हूँ. अच्छा ठीक है तुम करते हो. नहीं नहीं, मैं टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ, मैंने कोर्स कर लिया. बहुत अच्छी बात है, कर लिया. क्या किया, क्या सीखा भैया ऐसा फंडामेंटल एनालिसिस करके आपने 6 महीने में? जो दिग्गज हो गए, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स 10 साल में नहीं सीख पाते. अच्छा नहीं, उससे बहुत कुछ सीख लिया. एंड ही इज इंटेलिजेंट लर्नर, सो ऑल पॉइंट टेकन. ठीक है, टोटल असेट्स का कितना % आपने पैसा इन्वेस्ट किया है शेयर्स में? टोटल एसेट सर? नहीं काफी किया. अच्छा नहीं बता तो कितना. मैंने 4 लाख किया है. ओके. अच्छा 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, गुड, ठीक है. एंड कितना टाइम लगा था? नहीं, सैटरडे संडे में काफ़ी टाइम देता हूँ इसमें, गुड. टोटल असेट्स कितना है? जिस घर में रह रहा है वो कितने का है? 3.5 करोड़. अच्छा, गाड़ी कितने की है? 45 लाख. वीकेंड हाउस जो तूने लोनावला में लिया है वो कितने का है? 1.5-2 करोड़. ओके. और जो अंडर कंस्ट्रक्शन लोधा की प्रॉपर्टी बुक करी है वो कितने? 2.5 करोड़. तो ये तेरे 4 लाख रुपए जो तूने इन्वेस्ट किए हैं, जिसमें तू बहुत मीनिंगफुल सैटरडे संडे का टाइम लगाता है, ये डबल भी हो गया. मैं तो बोलता हूँ तेरा बहुत बड़ा फर्क नहीं. क्या हो जाएगा तेरे पोर्टफोलियो में भाई. हम लोग जरा समझें, अंडरस्टैंड करें कि हम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं और किस लिए. व्हाट डू वी वांट टू डिराइव आउट ऑफ इट. राइट. तो ये कॉफी टेबल कॉन्वर्सेशंस करने के लिए है ये सिर्फ चीज़ें. क्योंकि वो लेफ्ट आउट हो जाता हूँ और मैं बेवकूफ़ लगता हूँ 4 लोगों के आगे, तो भाई मैं भी इन्वेस्टर बन जाता हूँ. ठीक है. एंड देन यू ऑल ऑफ अ सडन बिकम स्मार्ट. नहीं आई कैन डू दिस ऑन योर ओन. अरे भाई आप सब कुछ खुद ही कर सकते थे तो ट्रेन भी खुद ही चला लेते, हवाई जहाज भी खुद ही उड़ा लेते, है ना, कपड़े भी खुद ही सिलते बैठ के. है, सब चीज खुद करो. जब दांत यदि वो क्या बोलते हैं रूट कनाल करना होता है, खूब मशीन लेके, ड्रिलिंग मशीन लेके खुद ही कर लो प्लीज. तो जिसका जो काम है उसे करने दें. हम लोग हम जो अपनी स्किल सेट है उधर ज्यादा फोकस करें ताकि आपका कैश फ्लो आप इंप्रूव कर सकें. ये 2% एक्स्ट्रा जनरेट नहीं हो सकता. राकेश झुनझुनवाला इसलिए बना बिकॉज 24/7 he used to think about investing, he used to learn about investing. वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, ये सब पूरा जीजान सारी एनर्जीज चैनलाइज इस डायरेक्शन में थी. राधाकृष्ण दमानी सक्सेसफुल इन्वेस्टर. क्यों? बिकॉज ही यूज्ड टू स्टडी, अंडरस्टैंड द बैलेंस शीट, द बिजनेसेस. उसने पूरी जीजान लगा के डीमार्ट खड़ा किया, तो आज उसका वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ को क्रॉस किया है ना. तो हमें समझना है, सिर्फ वो ऊपर की उड़ती हुई हवा को नहीं पकड़ लेंगे. ट्रेडिंग अच्छी है, शेयर बाजार में तोप चल जाती है, कुछ तोप नहीं चलती. मतलब आप ये बोल रहे हैं कि अगर आप जॉब के साथ कर रहे हो तो इट माइट नॉट गिव यू दैट मीनिंगफुल डिफरेंस. इट विल नॉट, माइट नहीं, मैं बोल रहा हूँ इट विल नॉट. आप जॉब का आपने 1 महीने का कोर्स किया, उसके बाद 10 दिन आप फोकस से काम कर रहे हो, उसके बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट आ गया एंड देन यू आर बिजी फॉर नेक्स्ट 2 months. यू आर नॉट इवन इन अ पोजीशन टू चेक योर पोर्टफोलियो वैल्यू. या पोजीशन है भी तो आपका माइंडसेट नहीं है वो समझने का. ओके. तो फिर क्यों ऐसे काम करने हैं? राइट. सॉर्टेड. आप कपड़े सिलवाने के लिए आप आउटसोर्स कर दिया, आपने पैंटलून से खरीदते हो, वॉट एवर ब्रांड, यू एलन सोली से लेते हैं, वॉट एवर ब्रांड, H&M, दैट्स योर चॉइस, रेमंड्स, ठीक है. तो वो आपने आउटसोर्स कर दिया है, ठीक है. गाड़ी आपने ड्राइवर को चलाना आउटसोर्स कर दिया है, ठीक है. सर्विसिंग के लिए ड्राइवर अपने आप सर्विस स्टेशन पे भेज देता है. घर में मेड्स असिस्टेंट्स के लिए आती हैं. ऑफिस में देयर आर पीपल हु आर देयर टू असिस्ट यू. सो आपका जो कोर प्रिंसिपल है, कोर चीज़ के ऊपर काम करो. एंड you also need to take care of many other aspects like your relationships, about your health. ये पैसे की क्या चिक चिक मच लगा रखी है. Outsource it to the people who are doing this. Right. So my take is trading actually ये जो derivatives market या trading बना था, this was for big time investors to hedge positions. Right. कि भाई मैंने पोजीशन ले रखी है रिलायंस इंडस्ट्रीज की एंड मुझे एक सर्टन प्राइस पे लगता है कि आई वांट टू बाय मोर, तो आई बिल्ड पोजीशंस इन फ्यूचर्स और आई बाय ऑप्शंस बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास डिलीवरी है. कल जाके आई कैन टेक डिलीवरी ऑफ रिलायंस शेयर्स बिकॉज आई हैव गॉट मीनिंगफुल होल्डिंग ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज.
पर मेरे पास पोजीशन है नहीं एंड मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में, इट इज क्रेजी, नॉट गोइंग टू वर्क। बीच में सेबी का ही आई थिंक सो कुछ तो एक था कि 99% या 95% ऑफ द ट्रेड इन्वेस्टर्स और ट्रेडर बेसिकली लूज मनी। हर एक ऐप पे आता है लिखा हुआ, वंस यू ओपन द ऐप, एनी ऐप, इट इज मैंडेट बाय सेबी नाउ, अच्छा, इट्स अ मैंडेट दैट यू हैव टू डिस्क्लोज। तो ट्रेडिंग में कोई पैसा नहीं बनाता एंड ऑफ द डे, जो 2% लोग जो पैसा बनाते हैं, दीज आर इंस्टीट्यूशंस or in handful of individuals, handful, and those individuals, they don't talk, they make money. हाँ, that is correct because they are making money, definitely. Yes. So handful of people, and this is a full-time job, a job of expertise, and full-time. So आप पार्ट टाइम थोड़ा सा टाइम निकाल के सुबह 10 से 11:30 का स्लॉट मिलता है, मैं सौदा ले लूंगा, तो मैं क्लियर कर लूंगा भाई, इतना ही। और एक दिक्कत है इसमें, इस बिजनेस में देर इज नो मोट। मोट इज डिफाइंड एज नो एंट्री बैरियर। हाँ, तो क्या है, पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके पास है, सबके पास everybody है, can become a trader. बस ट्रेडर बन गए जी कल से। अच्छा, किसी ने 4 दिन का कोर्स कर लिया तो 5वें दिन तो वो ज्ञान देता है कि कैसे फंडामेंटल रिसर्च होती है, और सबसे ज्यादा जोर से वही बताएगा। No, I agree with that. YouTube पे बहुत लोग हैं। हाँ जी, हाँ जी, Definitely. सो देयर इज नो एंट्री बैरियर, तो इस वजह से एनीबडी कैन गेट इन, तो नहीं करना चाहिए। सो एनी बिजनेस, एनी मीनिंगफुल बिजनेस, अनलेस देयर इज एन एंट्री बैरियर, देयर इज नो मीनिंगफुल बिजनेस, सो सस्टेनेबिलिटी नहीं होती उस चीज की। ओके, ओके। तो अभी आप कैसे हेल्प कर रहे हैं लोगों को वेल्थ क्रिएट करने में? I talk about the concept of peaceful journey of wealth creation. Okay. शांति के साथ धीरे धीरे। So I'm an ardent shouter of SIPs। आप सिस्टमैटिकली, लगातार, बार बार, हर महीने शिद्दत से, श्रद्धा से आप इन्वेस्ट करते रहिए एक लंबे समय के लिए, क्योंकि आप सांस तो लगातार ले रहे हो। आप छोड़ते हो कभी सांस लेना? नहीं। आप चलना नहीं छोड़ते हो, आप खाना खाना नहीं छोड़ते हो। उसी तरह से जब आपके पास इनपुट आता है कैश का, उसका एक हिस्सा बचत का चला जाना चाहिए फॉर योर फ्यूचर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। वो आप लॉन्ग टर्म में करते रहेंगे तो स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट लगातार होता रहेगा, आपकी एवरेज बाइंग कॉस्ट अच्छी रहेगी, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, राइट। you will be getting the benefit of GDP, you will be getting the benefit of inflation plus growth of economy another 2%। so ये इस तरह के रिटर्न आपको कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म में मिलेंगे, और इस तरह के रिटर्न से राकेश झुनझुनवाला वेल्दी हुआ है, उससे ज़्यादा रिटर्न उसने भी जनरेट नहीं किए हैं, वॉरेन बफेट ने भी यही किया है। तो what you need to have time, you need to have patience, your health should be good। So invest your time on your health. Invest your time on relationships within families। तो हम नेटवर्किंग की बात करते हैं, फैमिली में तो नेटवर्क होता नहीं है, क्योंकि घर जाते ही सबका अपना अपना मोबाइल और अपने अपने स्क्रीन चल रहे हैं। सो वेयर इज द इंटरेक्शन? सो लेट्स नेटवर्क एट अवर होम फर्स्ट, देन नेटवर्क विद योर फ्रेंड्स, देन रीच आउट टू द लार्जर पीपल। तो हम ये करते रहें, अपना हेल्थ का ध्यान दें, पैसे को धीरे धीरे डिप्लॉय करें, नीड बेस्ड, हर एक नीड के लिए डिफाइन करके हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से सोर्स में करना चाहिए, एसेट एलोकेशन कर लें, अपना रिस्क प्रोफाइलिंग कर लें कि मेरा अभी तक का पैसा कहाँ इन्वेस्ट हुआ है, मेरी एज क्या है, कैश फ्लो सिचुएशन कैसा है, मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, कौन से एसेट क्लास है, ये सारे पैरामीटर्स हम बात करें। एंड हम वी सिस्टमैटिकली वर्क ऑन अ थियरी, वी कॉल इट मनी मैप्स। सो वी take them through the journey of money maps, whereby all your goals of money, cash flow requirements will be well taken care of. So we help them create their balance sheet every year. So we analyze the balance sheet as to how it is performing. So we'll help you sort out your financial journey. और आपका जो पैसे से जो लगाव है, उस लगाव को थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं थोड़ा कम करो, अपनी सेहत से थोड़ा ज़्यादा लगाव करो। Though my job is professionally to talk about wealth, but wealth and health, they go hand in hand। क्योंकि पैसा बहुत हो जाएगा, हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं करोगे। बराबर, राइट। पैसा है, हेल्थ है, रिलेशनशिप्स नहीं है, इट्स ऑफ नो यूज। बड़े बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव आप दे रहे हो, मतलब एवरी वेल्थ मैनेजर ओनली टॉक्स अबाउट कि आप कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, आप बहुत ही अलग बात कर रहे हो इस पर्सपेक्टिव में। दैट्स व्हाट, वो रिटर्न तो मैं जनरेट करूँ, वो तो होंगे ही होंगे, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग इन दैट। विद माई एक्सपीरियंस, आई एम
helping you do take the proper steps that will help you reach to your goals. So वो returns तो आएंगे ही आएंगे, that's an outcome. रिटर्न्स के ऊपर मैं अपने पोर्टफोलियो पे रिटर्न्स पे काम नहीं करता, तो आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स के ऊपर क्या तो कर पाऊंगा. प्रॉपर एसेट एलोकेशन, नीड, और उस नीड के लिए हम कहाँ पे उसको डिप्लॉय कर सकें ताकि नीड्स फुलफिल हो, और नीड्स फुलफिल होती है. Okay. ठीक है, उसमें रिस्क प्रोफाइलिंग कर लें, शॉर्ट टर्म का पैसा कहाँ है वहाँ पे थोड़ा सेफ्टी क्रिएट कर लें, लॉन्ग टर्म में थोड़ा डेट का पोजीशन देख लें. सो ओवरऑल सब पैरामीटर्स को देखें, समझें, बैलेंस शीट भी बनाएं, कैश फ्लो सिचुएशन भी देखें, एंड ओवरऑल दैट्स व्हाट. सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होएगा. पैसा विल प्ले इट्स इंपॉर्टेंट रोल, वो हमें बिल्कुल चाहिए, और ढेर सारा चाहिए, बहुत सारा चाहिए, लेकिन साथ में ये दोनों चीज़ों को और ध्यान रखो, रिलेशनशिप और हेल्थ का, तभी पैसे का मजा ले पाएंगे. Okay. Okay. वरना पैसा होगा, घुटने साथ नहीं देंगे तो कहीं घूमने लायक नहीं रहोगे. Agreed. Agreed. डायबिटीज हो गई, ठीक चीज़ है, खा पी नहीं पाओगे. मीठा पसंद बहुत है, नहीं खा पाओगे. Right. मन मार के तो चीज़ों को होलिस्टिक व्यू से हम देखें. So it's wealth, health, and And relationships. relationships. Okay. So we have created a formula: wealth to the power with purpose, driven with purpose. Chart, CHART. So C is consistency. Then in bracket assets, Okay. relationships, and wealth. Chart, CHART. So consistency, health, assets, and relationships to the power time. Okay. All right. So consistently we work on these three areas: Okay. health, assets, relationships, and to the power time is what? Till the time we are there. Okay. तो Wow. ये कंसिस्टेंटली पूरे जीवन भर कर, ऐसा नहीं है कि 10 साल कर लो हो जाएगा. ये लगातार हमें करना है, क्योंकि हम सांस भी लगातार ले रहे हैं, खाना भी लगातार. नहीं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव. ये मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के भी कि इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी. हाँ, हाउ एवरीबडी ओनली टॉक्स अबाउट मनी. आप YouTube खोलिए तो हर किसी को आपको 10x बनाना है, 5x बनाना है, यूनिकॉर्न बनना है. हाँ जी, हाँ जी. तो दैट इज अ डिफरेंट मतलब थॉट प्रोसेस कि आप हेल्थ के साथ भी उतना फोकस्ड रहिए, रिलेशनशिप में फोकस रहिए. दैट इज वेरी गुड. यस, वंडरफुल. तो थैंक यू वेरी मच सर. आई मीन दिस कॉन्वर्जेशन बहुत अच्छा रहा. इनफैक्ट हमने आपका कॉर्पोरेट साइड भी देखा, आपका जो अभी प्रोफेशनली आप कर रहे हो एंटरप्रेन्योर साइड, तो वो भी एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा ऑडियंस के लिए. तो वंडरफुल. So thank you very much, sir, for taking out time and coming to office and sharing your thoughts. Thank you, Ganesh. Thank you for having me. Yeah, thank My you, sir. pleasure. Okay.